اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی وہ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم لوگ کر رہے تھے یہ جملہ فی ہی. تو ہی سے مراد کیا ہے؟ مدرسہ. ہی کیوں آیا؟ مدرسۃ تو مؤنث ہے نا، تو فی ہی کیوں آیا؟ سر فصلن کے لیے آئیے کلاس روم. ہاں فصل کے لیے. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. یہ فی ہی سے مراد کیا ہے؟ کلاس کے بارے میں. کلاس تو مذکر ہے نا، ٹھیک ہے، کلاس کے بارے میں. ٹھیک ہے، فی ہی یعنی کہ ان دا کلاس. کلاس مذکر ہے، فی ہی یعنی ان دا کلاس. کلاس میں، اس میں یعنی کہ کلاس میں ہے کیا ہے؟ نافذتانی کبیرتانی. نافذتانی کبیرتانی. تو یہ جملہ ہے فی ہی نافذتانی کبیرتانی. تو اس میں ہے دو کھڑکیاں. دو کھڑکیاں، ٹھیک ہے، اور دو بڑی کھڑکیاں. ٹھیک ہے، بڑی. کبیرتن کبیرتانی. ٹھیک ہے، نافذتن نافذتانی. دو ہے نا، دو. نافذتانی اور اس کا نعت آ رہا ہے یعنی کہ بڑی. تو آنی کبیرتن سے کیا ہو گیا؟ کبیرتانی. نعت منوط میچ کرتا ہے ڈوئل میں بھی. نعت اگر ڈوئل ہے مثنیٰ ہے تو منوط اگر مثنیٰ ہے تو نعت بھی کیا ہوگا؟ مثنیٰ. نافذتانی کبیرتانی. اچھا اس جملے میں خبر کہاں ہے؟ خبر مبتدا خبر کہاں ہے؟ فی ہی نافذتانی کبیرتانی. کہاں ہے مبتدا خبر اس جملے میں؟ فی ہی جار مجرور خبر ہے. ہاں بہت اچھا. اور مبتدا کہاں ہے؟ نافذتانی مبتدا ہے. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. نافذتانی مبتدا ہے. ٹھیک ہے. سوال پتہ، مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے تو اس میں الف ڈینوٹ کرتا ہے، وہ مطلب جی بہت اچھا، مبتدا. بارک اللہ فیک. الف مرفوع کی علامت ہے. الف از دا سائن آف مرفوع. تو الف از دا سائن. الف مرفوع کی علامت ہے. سوال پتہ کس میں الف مرفوع کی علامت ہوتی ہے؟ مرفوع کی علامت دمہ ہے. تو مرفوع کی علامت الف. الف کب مرفوع ڈوئل کی میں. علامت؟ ڈوئل میں. یاد رکھنا، بہت اچھا. مثنیٰ میں مرفوع کی علامت الف ہے. مثنیٰ میں مرفوع کی علامت الف ہے، بس یاد رکھنا ہے. نافذتانی یہ مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے. کیسے پتہ مرفوع ہے؟ الف. الف. ٹھیک ہے. اور کبیرتانی کیا ہو گیا پھر؟ مبتدا کا کیا ہے؟ یہ نعت ہے. نعت ہے. ٹھیک ہے. تو ڈوئل میں مرفوع کی علامت الف ہے. مجرور کی علامت کیا ہے ڈوئل میں؟ نافذتانی. جب مجرور کیسے ہوگا یہ؟ نافذتانی آئینی ہوگا. عینی. بہت اچھا. تو نافذہ کیا ہو جائے گا؟ نافذہ آئینی. نافذتینی. ٹھیک ہے. یہ مجرور ابھی آیا نہیں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے، ہم لوگ یہ کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، نافذتینی. ٹھیک ہے. بابانی بابینی. مسجدانی مسجدینی. یہ مجرور ہے. مجرور کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا. کسرہ نہیں بلکہ یا. اچھا اس میں ہے دو بڑی کھڑکیاں. وفیہی اور اس میں ہے یعنی اور اس میں کلاس میں ہے کیا ہے؟ مکاتب اور وکراسیو. مکاتب اور کراسیو. کیا ہے یہ؟ مکاتب کراسیو. کراسی مطلب کرسی کا پلورل ہے. کرسی کا پلورل ہے. بہت اچھا. کرسی کا پلورل کیا ہے؟ اور مکاتب کیا ہے؟ مکتب کا. مکتب کا پلورل. مکتب. مکتبن جمع کیا ہے؟ مکتبن. مکاتب. اچھا جمع یہ تنوین نہیں لیتا ہے، یاد رکھیں. مکتبن جمع کیا ہے؟ مکاتب. مکاتب تنوین نہیں لیتا. کچھ جمع کا صیغہ ہے، کچھ جمع کا اوزان ہے، پیٹرن ہے، ویٹ ہے جو تنوین نہیں ایکسپٹ کرتا. ٹھیک ہے. جس میں سے کیا ہے؟ مکاتب. مفاعل یہ ایک وزن ہے. مفاعل. مساجد. بہت اچھا. مفاعل. اس پیٹرن میں جو بھی ورڈ آئے گا جمع آئے گا. مفاعل. مساجد. مدارس. مدرسہ کی جمع کیا ہے؟ مدرستن. مدارس. مسجد مساجد. مجلس بیٹھنے کی جگہ مجالس. ٹھیک ہے. مفاعل. تو مکاتب اس وزن میں ہے. اس طرح کے چار وزن ہے جو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے جو تنوین نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو مکاتب بھی اسی طریقے سے ہے، تو یہ تنوین نہیں ایکسپٹ کرتا. کراسیو بھی یہ جمع کس کا جمع ہے؟ کرسی. ٹھیک ہے. کرسی کی جمع ہے کرسیون. کرسیون. تو جمع کیا ہے؟ کراسیو. کراسیو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جمع کا جو پیٹرن ہے یہ تنوین نہیں لیتا ہے. کراسیو. ٹھیک ہے. مفاعلو کی طرح یہ بھی مفاعیلو کہہ سکتے ہیں. اس کا وزن ہے مفاعیلو. آئین کے بعد یا ہے. خیر اس میں چھوڑ دیجیے.
सिंपल समझिए, करासियु मकातिबु एक जैसा है, यानी कि तनवीन नहीं लेता है ये, ठीक है, तनवीन नहीं लेता है। तो इसमें है, यानी कि क्लास में है, इन द क्लास देयर आर, क्या क्या तर्जमा होगा, और इसमें है, व फी, और इसमें है, क्या तर्जमा होगा, लाइब्रेरी एंड बुक्स, मकतब मतलब मकातिब किससे, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज नहीं, क्लास के अंदर में क्या है, And there are tables and नोटबुक, टेबल्स, ठीक है, टेबल्स, मकातिब से मेरा टेबल्स, एंड इन इट टेबल्स आर एंड चेयर्स, टेबल्स एंड चेयर्स, और इसमें है टेबल्स और कुर्सियां, ठीक है, व फीही, और इसमें है, सब्बूरतुन कबीरतुन, सब्बूरतुन यानी क्या है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, ब्लैक व बोर्ड, फीही बिग, सब्बूरतुन कबीरतुन, फीही ये जुमला है, फीही खबर है, जार मजरूर, खबर मुकद्दम, खबर पहले आया, सब्बूरतुन क्या है, मुब्तदा, मुब्तदा है, मरफू है, और कबीरतुन क्या है, उसका नात है, इसका नात है कबीरतुन, मुब्तदा का, ठीक है, वफी सब्बूरतुन कबीरतुन, ठीक है। हादा, हाँ इसको कैसे पढ़ेंगे, हादा, हादा क्या पढ़ेंगे इसको, hadha maktabul मकतब mudarrisi wa zalika kursiyuhu वज़ाका, ठीक है, वज़ा wa zaka। का कुर्सी, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर एक चॉइस इंसान सोच सकता है, इसको क्या पढ़े, हाजा मकतबुन पढ़े या मकतबू पढ़े, ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या अप्रोप्रिएट है, क्या मुनासिब है, ठीक है। अगर कोई पढ़ता है इसको हाजा मकतबुन, हाजा मकतबुन, ठीक है, तो यानी तर्जमा क्या हो जाएगा, ये टेबल है, ये मेज है, ठीक है। फिर अल मुदर्रिस अकेला हो जाएगा, अगर आप इसको पढ़ देंगे हाजा मकतबुन, ये टेबल है, और इसको पढ़ेंगे अल मुदर्रिस, तो ये मुदर्रिस अकेला हो जा रहा है, क्योंकि वाव के बाद फिर नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, वदा का, ठीक है। अगर पढ़ते मकतबुन और इसको पढ़ते फिर अल मुदर्रिस, तो ये सेंटेंस अजीब सा हो जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, मुजाफ इसलिए मुजाफ इलैह बन पड़ेगा। इसलिए इसको तनवीन पढ़ना गलत हो जाएगा, इसको दम्मा देना गलत हो जाएगा, इसको अल मुदर्रिस को, ठीक है, और इसको तनवीन देना गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, मकतबुल ठीक है, क्या मुदर्रिस, मुनासिब है। तो इसीलिए सही क्या मुजाफ है, मुजाफ हाजा इलैह है, मुदाफ इलैह पढ़ा जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, फिर हाजा मकतबुल मकतबु मुदर्रिस, ये मुदर्रिसी, मुदर्रिस का टेबल, मुदर्रिस की मेज है, व जाका, ज़ाका जाका और जालिका सेम है, ठीक है, जाका और जालिका क्या है, सेम है, जालिका और जाका मतलब क्या होता है, वो, दैट, ठीक है, जाका और जालिका सेम है, ठीक है, वो यानी कि डैट, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, जालिका जो वर्ड होता है, जालिका में जा एक हर्फ है, जा एक वर्ड है, ली एक वर्ड है, का एक वर्ड है, ठीक है ना, ये 3 वर्ड होता है जालिका के अंदर में, इसको कहते हैं, ठीक है, एक किस्म है, जालिका एक है, जालिका भाई एक ही है, जालिका क्या है, जालिका इस्मु इशारा, ये एडवांस बता रहे, समझ में आता समझिए, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, भूल जाइए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, जालिका क्या है, दैट, वो, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम लोग, जालिका में 3 कंपोनेंट्स है, जालिका का 3 हिस्सा होता है, 3 कंपोनेंट्स तालिका के अंदर में, ठीक है, एडवांस बात बता रहे हैं। एक्चुअल इशारा जो होता है वो सिर्फ इससे होता है, ज़ा एक्चुअल इशारा है, ज़ा, ठीक है। और ली जो है ये क्या मीनिंग देता है, दूर का, बुअद, डिस्टेंस, ज़ा इशारा है, ठीक है, ये ज़ा असल में क्या है, ये इशारा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है, और ये लाम क्या है, ये डिस्टेंस के लिए है, ली, ज़ा ली। और का क्या है, का क्या है, ये का है जो सामने आपके मौजूद है, वही दमीर का है, जालिका, यू, जालिकी, जालिको, जो सामने है, अपोजिट सामने मुखातब बैठा है, सामने है, तो जालिका जालिकी का मतलब होता है तुम, यानी कि जालिका मतलब होता है डैट, वो, लेकिन का में ये भी माने है, का मतलब तुम सुन लो, माने सामने वाला अटेंशन देगा, जालिका, तालिकल किताब, जो जो जालिका, हाँ वही, ठीक है, जालिका, ठीक है, जालिका का मतलब डैट होता है, लेकिन एडवांस अगर आपको समझना है तो ये का जो है इसका मतलब क्या होता है, यू, तुम, सामने, यानी कि मुजक्कर से बात कर रहे हैं, जालिकी। अब जालिका किसी से भी, किसी के सामने भी यूज कर सकते हैं, मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, जमा हो, जो भी हो, लेकिन अगर इन डेप्थ डिटेल में आपको समझना है तो कभी कभी इसका इम्प्लीकेशन होता है, कभी कभी इसका असर होता है, ठीक है, जालिका
اور آپ فیمیل سے بات کریں تو ذالکی کہہ سکتے ہیں. ذالکی یعنی کہ تم دھیان سے سنو ہاں کہ وہ، ذالکی ذالکم تم سب، ہاں تم سب دھیان سے سنو، وہ ذالکم قرآن میں ہے نا ذالکم، ذالکن ذالکن قرآن میں کہیں یاد آ رہا ذالکن بول کے کچھ آیت ہے؟ ذالکن ذالکن بہت ساری عورتوں کا قصہ کہا ہے قرآن میں، سٹوری ہے بہت ساری عورتوں، ایک سٹوری ہے قرآن میں، قصہ ہے، اور بہت ساری عورتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے. کون سا قصہ ہے؟ سورہ یوسف میں. ہاں سورہ یوسف میں، ذالکن، ٹھیک ہے، ذالکن الذی لمتننی اس طرح کا آیت ہے، ایک بار دیکھنا پڑے گا. تو ذالکن سورہ یوسف میں استعمال ہے، ٹھیک ہے. ذالکن عزیز کی بیوی جو ہے، عزیز کی وائف، وہ کہتی ہے ذالکن، ہاں اس وجہ سے تم ایسا کہتی تھی نا میرے بارے میں، ذالکن تم لوگ سنو، ٹھیک ہے. یہ ایڈوانس ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھول جائیے اگر نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے. تو یہ ذالکہ کا توڑ کے بتایا، لا اشارہ ہوتا ہے، لا ڈسٹینس کے لیے ہوتا ہے، کا خطاب کے لیے ہوتا ہے، کاف الخطاب، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جس سے آپ بات کریں اس حساب سے. ذالکہ، ذالکی، ذالکم، ذالکن، سیکنڈ پرسن آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک. ذالکما یہ بھی کر سکتے ہیں، یو ٹو، ہاں تم لوگ دونوں سن لو کہ وہ، ذالکہ، ٹھیک ہے. خیر یہ ایڈوانس ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے. اچھا تو اس کے بعد میں ہاں، ھذا مکتب المدرسی، یہ مدرس کا ٹیبل یا میز ہے. دس از دا ٹیبل آف دا ٹیچر. وذاکا، ذاکا اور ذالکا سیم ہے، ٹھیک ہے. وذاکا اور وہ، کرسیہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کرسیہ، اور وہ on his کس کی چیئر ہے، کس کی کرسی ہے؟ مدرس. اور وہ اس کی، یا اور وہ ان کی کرسی ہے، اور وہ and that is his chair، ٹھیک ہے. that is his chair. وَتِلْكَ اور وہ کیا ہے؟ مکاتب طلاب، کیا پڑھیں گے؟ طلابی، مضاف الیہ. وَتِلْكَ مکاتب الطلابی، اور وہ یعنی کہ دور میں ہے، ٹھیک ہے. وَتِلْكَ and that is مکاتب الطلابی، اور وہ کیا ہے؟ طلاب کے میز ہیں. and those are the tables of the students. اور کیا دور میں؟ وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور یہ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وَكَرَاسِيُّهُمْ مطلب and ہاں and their chairs، یعنی اور ان کی کرسیاں، وہ ہے ان کے، اور پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور وہ ہے طلاب کے میز، طلاب کے ٹیبلز اور ان کی کرسیاں، اور وہ ہے طلاب کے میز اور ان کی کرسیاں. وَكَرَاسِيُّهُمْ، وَكَرَا جمع، وَكَرَاسِيُّهُمْ، ٹھیک ہے. سمجھ تلکا کیوں آیا یہاں پہ؟ یہ جمع کے لیے مکاتب. غیر عاقل، بہت اچھا، یہ غیر عاقل کے لیے پھر سے آیا، کیونکہ مکاتب مذکر ہے، مذکر ہے نا مکاتب، مکتب مذکر بولتا نہیں ہے، پھر بھی تلکا ہے، تلکا تو مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ذالکہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مکاتب غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کو سمجھتے ہیں کیا؟ مؤنث واحد، مؤنث مفرد، اس لیے تلکا آیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کیا؟ مکتب المدرسی کبیر، مدرس، ہاں مکتب المدرسی کبیر، مدرس کا ٹیبل کیا ہے؟ بڑا ہے، بڑا ہے. مضاف الیہ کہاں ہے اس جملے میں؟ مکتب المدرسی سوری، یہ مبتدا خبر کہاں ہے اس میں؟ مکتب مبتدا ہے، مبتدا ہے، بہت اچھا. اور خبر؟ کبیرن، سوری کبیرن خبر ہے، بہت خبر اچھا. ہے. کبیرن خبر ہے، بہت اچھا، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے. ٹھیک ویسے ہی تو وہ مکاتب الطلابی، اور طلاب کے ٹیبلز، طلاب کے میز جو ہے، طلاب کے میزیں کیا ہے؟ صغیرتن، چھوٹے ہیں. یعنی مدرس کا ٹیبل کیا ہے؟ بڑا ہے، اور طلاب کے ٹیبلز کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں.
ٹھیک ہے، اور طلاب کے ٹیبلز کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں. اچھا اس کے بعد میں فی کیا پڑھیں گے؟ فی فصلو نا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ فی فصلینا فصلینا. فصلونا تھا لیکن فی آنے سے فی فصلینا ہو گیا. ہمارے کلاس میں، ان آور کلاس، ہمارے کلاس میں ہے. کون ہے ہمارے کلاس میں؟ عشرۃ الطلاب. عشرتو پڑھیں گے یا عشرت؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟ عشرۃ. عشرت. عشرۃ. جب ہوگا گولتا ہوگا تو اس کو فتح پڑھا جائے گا، سکون نہیں. گولتا ہٹا دیں گے اس کو پھر سکون پڑھیں گے. ٹھیک ہے، گولتا اگر رہے گا تو اس کو فتح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، گولتا رہے گا تو فتح پڑھا جائے گا. عشرۃ فی فصلنا، ان آور کلاس، ہمارے کلاس میں ہے 10 اسٹوڈنٹس، 10 شاگرد. عشرۃ طلاب، عشرۃ نمبر میں مؤنث آیا کیونکہ جس کو گن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. عشرۃ طلاب. ٹھیک ہے، وہم وهم من من بلد بلاد. بلاد یہ کیا پڑھیں گے؟ مختلف. مختلف. مختلفۃ. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مختلف. مختلفۃ. مختلفتن. مختلف ہوگا یا بلاد مختلف. تین تین and they ہوگا. are from different نعت منوط countries. ہوگا. ہاں تو کیا ہو گیا؟ یہ نعت منوط ہوگا. نعت منوط ہو And گیا. they بہت اچھا نعت منوط ہے. یہ ہو گیا، نعت منوط ہو گیا. ٹھیک ہے، and they are from، ہم ہو گیا کیا؟ دے مانے وہ ہم اینڈ دے آر، اور وہ ہے یعنی وہ یعنی کہ وہ 10 شاگرد جو ہیں وہ کیا ہے؟ من دے آر فرام بلاد کنٹریز، مختلف ڈفرینٹ کنٹریز، وہ الگ الگ ملکوں سے ہیں، مختلف ملکوں سے ہیں، مختلف کنٹریز سے ہیں. من بلاد، بلاد جمع ہے کس کا؟ غیر عاقل کا. بلد، بلد کا جمع کیا ہے؟ بلاد. اس لیے گولتا آ گیا نعت میں. مختلفن نہیں آیا، مختلفتن. بلاد کو مؤنث سمجھا گیا گرامر کے اعتبار سے، مؤنث واحد، فیمینن سنگولر، مختلفتن ہو گیا. ٹھیک ہے، 10 شاگرد. اس ترجمہ کیا؟ اور ہمارے کلاس میں 10 شاگرد ہیں اور وہ الگ الگ ملکوں سے ہیں. اب ایک ایک کر کے آ رہا ہے کیا؟ سمپل. ہاذا کیا پڑھیں گے؟ محمد. محمد محمد وہو من الیابان، یابانی. یہ محمد ہے اور یہ جاپان سے ہے. وہذا خالد وہو من الصینی، کسرہ من آنے سے. یہ اور اینڈ دس از خالد اینڈ ہی از. انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اینڈ دس از خالد اینڈ ہی. اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ اور یہ خالد ہے اور یہ چائنا سے. دونوں میں یہ کر سکتے اردو میں. انگلش میں دس اور ہی آ رہا ہے. وہذا خالد وہو من الصین، اور یہ خالد ہے اور یہ چائنا سے. وہذا احمد وہو من الہندی، اور یہ احمد ہے اور یہ ہندوستان سے ہے. احمد کیا؟ احمد یا احمدو کیا ہے؟ یہ احمد. ہاں احمد جو نام ہے نا یہ تنوین نہیں لیتا ہے. نیکسٹ جو چیپٹر ہمارا ہوگا نا اس میں آئے گا کہ کون کون سا اسم تنوین نہیں ایکسپٹ کرتا، کیا کیا کیٹیگریز ہے اس کا. ٹھیک ہے، احمد، ٹھیک ہے، اصغر، احمدو، اصغرو، اجملو، اخترو. ٹھیک ہے، اس طرح کا پیٹرن والا جو لفظ ہے وہ تنوین نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پرٹیکولر وزن ہے. ٹھیک ہے نا. ہذا احمد وہو من الہندی، اور یہ احمد ہے وہو من الہندی اور یہ انڈیا سے ہے. وہذا ابراہیم، کیا پڑھیں گے؟ تنوین. ابراہیم نام بھی تنوین نہیں لیتا ہے، یہ بھی تنوین Foreign نہیں name. ایکسپٹ کرتا ہے. فورن نیم ہے. ٹھیک ہے، فورن نیم تنوین. وہ ہوا من، اور یہ کہاں سے؟ غانا. اور یہ ابراہیم ہے اور یہ گھانا افریقن کنٹری گھانا سے ہے. وہذا اسماعیل یلو، لو اسماعیل بھی نان عربک نیم ہے، فورن نیم ہے. اور یہ اسماعیل ہے وہوا من نائجیریا، اور یہ نائجیریا سے. وہذا یوسف، یوسف میں تنوین نہیں ہے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تنوین نہیں ہے. اس کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یوسف کیسا نام ہے؟ Foreign name. فورن نیم ہے، فورن نیم ہے. ٹھیک ہے، ہاذا یوسف، اور یہ یوسف ہے. وہ ہوا من انکلترا، انکلترا یعنی کہ کون سا کنٹری؟
इंग्लैंड इंग्लैंड, ठीक है, ये यूसुफ है और ये इंग्लैंड से है। वहादा बैरम बैरा बैरम, और ये हाजा वहाजा, और ये बैरम है। वह हुआ मिन तुर्की तुर्किया, और ये तुर्की से है, और ये तुर्की से है, वह हुआ मिन तुर्किया। बैरम भी नाम, फॉरेन नेम। वहादा क्या पढ़ेंगे इसको? अम्मारू या अम्मारुन? अम्मार अम्मारुन, हाँ अम्मारुन, ये क्या है? ये अरबी अरबी नाम है, ये तनवीन लेगा, ठीक है, ये तनवीन लेगा, ये तनवीन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हाजा अम्मारुन वह हुआ मिन मालेशिया, मलेशिया और ये अम्मार, और ये मलेशिया से। वहादा अलीयुन अलीयुन, और ये अली है। वह हुआ मिन, और ये कहाँ से है? अमेरिका अमेरिका। तो आप देख रहे हैं कुछ बहुत सारे ऐसे अल्फाज है, जैसे कि गाना खत्म हो रहा है अलिफ पे, नाइजीरिया खत्म हो रहा है अलिफ पे। ये आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? बीच में जी कट जी गया था, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, कुछ कॉल आ जाता है मेरा, वो कट जाता है। तो गाना एंड हो रहा है अलिफ पे, नाइजीरिया अमेरिका खत्म हो रहा है अलिफ पे, ठीक नाइजीरिया है। इनकलतरा अलिफ पे, तुर्किया अलिफ पे खत्म हो रहा है, मालेशिया किस पे खत्म हो रहा है? अलिफ पे, अमेरिका अलिफ पे एंड हो रहा है, आगे में क्या? युगोस्लाविया अलिफ पे। इसलिए आप देख रहे हैं मिन का असर नहीं हुआ, मिन हर्फ जर है, लेकिन इनकलतरा, गाना, नाइजीरिया, तुर्किया, मालेशिया वगैरह, अलिफ पे तो कुछ हरकत आ नहीं सकता ना, तो वो समझ लीजिए फिक्स दिख रहा है हमें, है ना, फिक्स नजर आ रहा है, तो कुछ चेंजिंग वो नहीं, चेंजेस नहीं ले सकता है, इसलिए अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, मिन आ जाए, फी आ जाए, जो भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद वहादा, और अबू ये कौन है? बकरिन अबू अबू बकरिन बकरिन, ठीक है, अबू बकरिन। और ये अबू अबू बकरिन कैसा नाम है? कौन सा सीगा है? नात मनुत मुदाफ मुदाफ अलैह, खुदा खबर क्या है इसमें? अबू बकरिन मुजाफ मुदाफ मुजाफ अलैह। इलैहि है। मुदाफ मुदाफ अलैह है, मुदाफ मुदाफ। अबू क्या है? मरफू मंसूब? फादर अबू मरफू मंसूब क्या है? मरफू है ना। मरफू है। अबू बकरिन, अच्छा, ये पूरा सेंटेंस में मुब्तदा खबर कहाँ है? हाजा अबू बकरिन, मुब्तदा खबर कहाँ है? ग्रामर, हादा ग्रामर क्या मुब्तदा है? हाजा मुब्तदा है, खबर कहाँ है? हादा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रामर। अबू ग्रामर के अबू एतबार से देखा जाए सिर्फ अबू खबर होगा, सिर्फ क्या खबर होगा? अबू। ऐसे पूरा नाम है लेकिन ग्रामर के एतबार से सिर्फ अबू खबर होगा, क्योंकि एक वर्ड खबर होता है, एक वर्ड जो दिखता है मरफू, तो अबू मरफू है। मरफू की अलामत क्या है अबू में? तम्मा अबू जो वर्ड है ये, और अखू जो वर्ड है, ठीक है, जब ये मुदाफ बनता है तो मरफू की अलामत क्या होती है? वाव 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 एक्स्ट्रा वाव, वाव। एक्स्ट्रा वाव, ठीक है, एक्स्ट्रा वाव आ जाता है ना, अबू, अखू, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ स्पेशल वर्ड है जिसमें मरफू की अलामत क्या होती है? ये वाव होती है, ठीक है, वाव। अखू, अबू, जब ये मुदाफ बनता है तो, ठीक है, जब ये मुदाफ बनता है, ठीक है। तो हाजा अबू बकरिन में मरफू की अलामत वाव है, ठीक है, इंशाल्लाह बाद में भी आएगा, ये पहले हम बता चुके मेरे ख्याल से, बाद में आएगा इंशाल्लाह, तो वजात करेंगे। तो अबू बकरिन या अखू, वाव मरफू की अलामत होती है, ठीक है इसमें, और मजरूर की अलामत होती है या, और मनसूब की अलामत क्या होती है? अलिफ। तो ये कुछ खास ऐसा 5 नाउन है, फाइव स्पेशल नाउन अस्माउल खमसा, उसमें एक कायदा होता है। खैर अभी छोड़ दीजिए इसको, अगर आप भूल गए हैं, या इंशाल्लाह बाद में इसका आएगा डिटेल्स, ठीक है। हाज अबू बकरिन, और ये बकर के अब्बू हैं, नहीं कि अबू बकर हैं, वह हुआ, और ये कहाँ से? युगोस्लाविया से है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। होम, हाँ इसको जो है, हाँ इसको कोई मीम और पे पढ़ना जमा है। चाहता है क्या? जानी भाई ने पढ़ा है बहुत, और कोई पढ़ना, और कोई वॉलंटियर करना चाहता है, इसको पढ़ना चाहता है जी? और कोई आप में से? आवाज आ रही है ना? जी हम मिन बिलाद मुख्तलिफतिन। हाँ सही। होम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, क्या ट्रांसलेशन होगा? जी ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? वो सब माने वो सब मुख्तलिफ शहर से हैं। मुख्तलिफ, हाँ मुल्कों से हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, सही, बिलादिन मुख्तलिफतिन। उसके बाद क्या हुआ? लुगातुहुम लुगात, ये मुख्तलिफतुन। लुगात क्या चीज है? जमा है या वाहिद है, क्या है?
लुगात कैसा कैसा जमा है ये? लुगत का प्लूरल है, लुगात। लुगत का लुगत, लुगतुन, बहुत अच्छा, लुगतुन। लुगत, हाँ ये प्लूरल है, ठीक है। लुगत, लुगतुन एक जुबान, एक लैंग्वेज। जमा क्या होगा? लुगतुन, जमा क्या है? लुगात। लुगातुन, ये ता खुल जाएगा फिर, लुगा यही है यहाँ, ये लुगात है, ठीक है। कैसा जमा है ये? जमा मुकस्सर, जमा तकसीर या जमा सालिम? कैसा जमा है ये? जमा जमा सालिम। सालिम। जमा सालिम। जमा मुअन्नस सालिम। मुअन्नस सालिम क्या होता है? आतुन। मुजक्कर सालिम क्या होता है? मुजक्कर सालिम कैसा होता है? एंडिंग ऊना। ऊना। ऊना, एंड ऊना होता है, ऊना, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये हो गया। व लुगातुहुम, क्या तर्जमा होगा उसका? लुगा व, और उनके उनकी जुबानें, और उनकी जुबानें, एंड देयर लैंग्वेजेस, यानी कि बताया जा रहा है वो सब अलग अलग मुल्कों से हैं। व लुगातुहुम, और उनकी जुबानें और उनके लैंग्वेजेस क्या है? व लुगातुहुम मुख्तलिफतुन, डिफरेंट है, अलग अलग है। व लुगातुहुम मुख्तलिफतुन, और एंड देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, और यानी कि और उनके जुबानें अलग अलग है। व, और उनके व क्या? अलवानु, अलवान, नया वर्ड आया, अलवान। अलवान कलर्स, ये भी जमा है, देयर अलवान कलर्स। जमा है। कलर, बहुत अच्छा। लौन, 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 लौनुन, लौन माने कलर, ठीक है। वर्ड, नया वर्ड आया, लिख लीजिए। कलर मतलब, लौनुन मतलब होता है कलर, रंग। लौन की जमा क्या है? क्या वर्ड आया अभी? अलवान, अलवान। अलवान। कौन सा वजन है ये? कोई वजन है? लौनुन, अलवानुन, क्या वजन है ये? अलवानुन, अफआलु, अफआलुन। और कोई वर्ड बताइए, जमा बताइए इस पैटर्न में। अलवानुन, अक्लामु, अफआलुन, अक्लामु, कलमुन, अकलामुन, बहुत अच्छा, अकलामुन। और कुछ वर्ड जमा? अकलामुन, अबवाबुन। अबवाबुन, बहुत अच्छा, अफआलुन, अबवाबुन, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। ऐसे सोचना होगा आपको, दिमाग आपका काम करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अलवान, तो तर्जमा क्या होगा? वह अलवानुहुम, और उनके रंग, मुख्तलिफतुन, डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी कि उनकी जुबानें अलग अलग है, और उनके रंग अलग अलग, उनके मैंने फेस, रंग, कलर, जिस जिस्म का रंग अलग अलग है। उसके बाद क्या आगे? वह वलाकिन, वलाकिन, ठीक है। वलाकिन मतलब क्या होता है? बट, लेकिन, माने उनके, बट, वो अलग अलग मुल्कों से हैं, और उनकी जुबानें अलग अलग है, और उनके रंग अलग अलग है। वलाकिन, वह, लाकिन में अलिफ है, थोड़ा हल्का सा अलिफ। वलाकिन यानी कि बट, लेकिन, दीनुहुम क्या होगा? दीनुहुम हम वाहिदिन, वाहिदुन। वाहिद। क्या तर्जुमा होगा इसका? दीनुहुम वाहिदुन मतलब दीन वन, एक, वन, वन किसका दीन? रिलीजन, दीनुहुम, एक देयर रिलीजन, देयर, हाँ उन सब का दीन, देयर रिलीजन, देयर इस्लाम। रिलीजन, उन सब का दीन, ठीक है, उन सब का दीन। दीनुहुम, और उन सब का दीन, मतलब वलाकिन, लेकिन, दीनुहुम, उन सब का दीन, उन सब का रिलीजन क्या है? वाहिद, वन, यानी कि एक वन, है, वाहिद मतलब एक, और उन सब, लेकिन उन सब का दीन क्या है? एक है। दीनुहुम, ठीक है, कहना तुम सबका दीन क्या होगा? तुम सबका दीनु, दीनुकुम, हाँ हुकुम, दीनु, कैसे लकुम दीनुकुम पढ़ते हैं ना जैसे, ठीक है, लकुम दीनुकुम, तुम सबका दीन। दीनुहुम, उन सबका दीन। मेरा दीन क्या होगा? मेरा दीन दीनी, दीनी, और हम सबका दीन क्या होगा? दीनुना, दीन, दीनु, ना, दीनु ना, हाँ। कबर में सवाल किया जाएगा ना तो कहेंगे दीनी अल इस्लामु, ठीक है, रब्बी अल्लाह, ठीक है। दीनी, मेरा दीन क्या है? इस्लाम है। दीनुहुम, तो दीनुहुम वाहिद, उन सबका दीन, लेकिन उन सबका दीन एक है। वह, और वरब वह रब्बुहुम, रब्बुहुम वाहिद, और उन सबका रब एक है। फिर वह, व नबीयुहुम वाहिदुन, हाँ, वह नबी, और उन सबके नबी एक है। वाहिद, वाहिद, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, रब्बु मुब्तदा, नबी मुब्तदा, वैसे दीनु मुब्तदा, ठीक है, वाहिद खबर है सब में। वह व क़िबलतुहुम वाहिदतुन, वक़िबलत, वाहिदतुन क्यों आया? सब वाहिद था, वाहिद वाहिद वाहिद, लेकिन किबलत जो है हाँ क्या मुअन्नस है? है। किबलत, किबलतुन, किबलतुन में ता देख रहे हैं, मुअन्नस,
ये बोलता ही होता है, लेकिन जब हम वगैरह अटैच होता है तो जाहिर सी बात है बोलता हट जाता है, लेकिन है तो बोलता है ना। किबला कैसे लिखा जाता है? किबलतुन। किबला मुअन्नस है तो खबर भी क्या हो गया? मुअन्नस। खबर मैच करता है मुब्तदा से। किबला मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस है। व क़िबलतुहुम वाहिदतुन, और उन सबका क्या? किबला एंड देयर डायरेक्शन इज वन, और उन सबका किबला एक है। उसके बाद क्या आया? हम मुस्लिमून, मुस्लिमून, हम मुस्लिमूना, तर्जुमा क्या होगा? एंड हम मुस्लिमूना, वो they all are they are Muslims. Muslims. हाँ दे ऑल आर मुस्लिम, वो सब मुसलमान हैं। मुस्लिमूना में दोनों आ गए, ठीक है ना, मर्द और औरत दोनों आ गए। जमा जो होता है ना, मेल का जमा है ये। मुस्लिमूना कैसा जमा है? ये मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना। कैसा जमा है ये? जमा जमा सालिम। सालिफूना। तो ये इसमें मुराद दोनों हो जाते हैं, औरत मर्द दोनों भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना, इंक्लूसिव है, ठीक है। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, हम मुस्लिमूना, वो सब मुस्लिम है, ठीक है। और वल मुस्लिमूना वल इखवा, मुस्लिमूना इखवतुन, इखवतुन, वल मुस्लिमूना इखवत, और मुसलमान Brothers. भाई क्या? भाई हैं, और मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, ठीक है। एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, वल मुस्लिमूना इखवतुन, और मुसलमान आपस में क्या? भाई हैं। यही रिश्ता मजबूत है, चाहे मुख्तलिफ मुल्कों से क्यों ना हो, अलग अलग जुबानें क्यों ना बोलते हो, और अलग अलग दिखने में अलग अलग रंग के क्यों ना हो, लेकिन इंसान को ताल्लुक जो मजबूत बॉन्ड जो जोड़ता है मुसलमान को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, वो उनका दीन है, ठीक है। दीन का वैल्यू होता है, नेशनैलिटी का कोई वैल्यू इस्लाम में नहीं है। कोई फला नेशन से, कोई ये नेशन से, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंसान का वैल्यू तब होता है जब इंसान मुसलमान होता है। ये सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता होता है कि सब मुसलमान है, चाहे कोई भी जगह से हो, कोई भी जुबान में बोलते हो, और जैसा भी दिखते हो। मजबूत ताल्लुक क्या है? सब मुस्लिम हैं, ठीक है। इससे बड़ा मजबूत रिश्ता और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वल मुस्लिमूना में इख्वतुन, और मुसलमान आपस में क्या? भाई होते हैं। एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, ठीक है। उसके बाद में दीनुहुम, हाँ ये हो गया ना। आदा मुदर्रिस, हाजा मुदर्रिस, मुदर्रिसुना, हाजा मुदर्रिसुना, ये क्या तर्जुमा होगा? ये हमारे टीचर, ये हम टीचर, हाँ, हमारे ये टीचर हमारे हैं। टीचर These हैं। are हाँ, दिस इज आवर टीचर। हाजा यानी ये, मुदर्रिसुना, हाजा मुब्तदा है और मुदर्रिसु क्या हो गया? खबर हो गया। ये हमारे टीचर हैं। उसके बाद पढ़िए क्या है? हुश शेखु बिलालुन, इसमुहु, हाँ, इस्मुहु, इस्मुहु मतलब क्या हो गया? his उनका name, उनका नाम। इस्मुहु मतलब हिज नेम इज, उनका नाम क्या है? अश-शेखु बिलालुन, उनका नाम शेख बिलाल है। उनका नाम क्या है? अश-शेखु, इस्मुहु इस्मुहु शेखु बिलालुन, ठीक है। देखा जाए तो इस्मुहु में इस्मु मुब्तदा है और ये खबर एक्चुअली शेखु हो रहा है, बिलालुन बदल है किसका? शेख का, ठीक है। शेख को हटा दे तो बिलाल उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। इस्मुहु बिलालुन, इस शेख टाइटल है तो इस्मुहु का नाम अश-शेखु बिलालुन, ठीक है। खैर, उनका नाम यानी हमारे उस्ताद का नाम क्या है? शेख बिलाल। वह हुआ, और वो कहाँ के हैं? मिन सूरिया, Syria, सूरिया यानी सीरिया, वो सीरिया से सीरिया, हैं, सीरिया के। वह हुआ, और वो रिजाल, रिजलुन सालिम, रजलुन, रिजलुन पढ़ेंगे या रजुलुन? क्या पढ़ेंगे? रज रजलुन, रजुलुन, हाँ, रिजलुन तो कहेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जा रही है, और रज्जु वो हो पैर, जाएगा। पैर है, पैर थोड़ी ना है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं। वो क्या है? रजुलुन। हाँ, ये डिफरेंस याद रखना है। आदमी के लिए क्या वर्ड है? रजुलुन, आदमी। और पैर के लिए क्या वर्ड है? रजलुन, रिजलुन। रिजलुन, रा पे कसरा है और okay. आदमी के लिए रा पे फतहा है, और जीम में क्या दम्मा है, और इसमें जीम में क्या है? जीम पे सुकून है। ये फर्क है। मैन यानी कि आदमी, यानी कि, और इसमें क्या हो जाएगा? Like, फीट, ये लेग, फीट नहीं लेग, ठीक, लेग, ठीक है। और वो क्या है? क्या तर्जुमा होगा? और वो रजुलुन, सालिहुन, नेक रजुलुन आदमी, साल, और वो नेक आदमी। वह हुआ रजुलुन सालिहुन, हुआ मुब्तदा, रजुलुन खबर, और सालिहुन क्या है? नात, नात हो गया, नात, नात हो गया। नहनु, हम सब, हम सब, हाँ, नुहिब्बुहु, we से हम love सब, him, we love him,
वी लव, हाँ नुहिब्बु, नुहिब्बु जो है ना ये फेल है, ठीक है, ये फेल है, ये आ गया बस मीनिंग बताने के लिए, अभी इसको डिटेल में स्टडी हम लोग नहीं किए। तो नुहिब्बु, नुहिब्बु मतलब क्या होता है, हम मोहब्बत करते हैं, हम पसंद करते हैं। नुहिब्बु मतलब क्या हो गया, वी लव, ठीक है, या वी लाइक, हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं। नुहिब्बु मतलब हम चाहते हैं, यानी पसंद करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं। नुहिब्बु, नू से क्या हो रहा है मीनिंग, नुहिब्बु मैंने हम सब, और नू के बदले क्या पढ़ देगा, उसको ऊ पढ़ दे तो क्या हो जाएगा, आई, उहिब्बु, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, आई का, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, उहिब्बु, ठीक है ना। और इसको अगर यू पढ़ दे, युहिब्बु, तो क्या मीनिंग हो जाएगा, यू यानी कि वो पसंद करता है। युहिब्बु, ही लाइक्स, ही लव्स, ठीक है, वो पसंद करता है, युहिब्बु। खैर अभी आप देखिए, उहिब्बु मतलब मैं पसंद करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, नुहिब्बु मतलब हम मोहब्बत करते हैं। तो नुहिब्बु हम किससे मोहब्बत करते हैं, किसको पसंद करते हैं, वी लाइक होम, नुहिब्बु हु से मुराद कौन है, हु मतलब शेख बिलाल। हाँ, शेख बिलाल मुराद है। नुहिब्बुहु माने टीचर बिलाल, शेख बिलाल मुराद है इससे। वी लव हिम, तर्जुमा क्या होगा इसका, वी लव हिम, ठीक है, हम मोहब्बत करते हैं उनसे, ठीक है, कसीरन, वी लव हिम अ लॉट, ठीक है, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत, हमको बहुत पसंद करते हैं। वी लाइक हिम मच, ठीक है, या वी, ठीक है, वी लव हिम अ लॉट, ठीक है, नहनु नुहिब्बुहु कसीरन, नुहिब्बु ये फेल है, बस तर्जुमा इसका समझना और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये टाइम भी हमारा जो है वो खत्म होने वाला है, और ये एक्सरसाइज क्या करना होगा आपको घर पे करना होगा, सिंपल है, ये कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में करते थे ना आप लोग, कॉम्प्रिहेंशन जिस चैप्टर पढ़ा गया ना, चैप्टर के बेसिस में आपको जवाब देना है। चैप्टर में जैसा कहाँ मदरसा कहाँ है, ऐना हाज़िहिल मदरसा, वेयर इज दिस मदरसा, वेयर इज दिस स्कूल, तो आपको खोज करके जवाब देना है। ये करीब मस्जिद के करीब है, इट इज नियर द मस्जिद। कम बाबन लहा, हाउ मेनी डोर्स इट हैज, कितने दरवाजे हैं उसके, तो आपको बताना होगा उसके 4 दरवाजे हैं या 3 दरवाजे हैं, ठीक है। इस तरीके से मिन ऐना अबू बकरिन, मिन ऐना यूसुफ, ठीक है, मिन ऐना अहमदू, अहमद कहाँ से है, फुला कहाँ से, इसका जवाब आपको अरबी में लिखना है, ये लिखेंगे ना आप बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अमुगलकतुन, क्या खुला है, क्या बंद है, अबवाबुहा, उसके दरवाजे क्या बंद है, अलआना अभी, अब मतलब होता है इधर, और अब मतलब या, क्या बंद है दरवाजा अभी उसके या खुले हैं, ठीक, ये आपको क्या करना है, जवाब देना है। सेम ये भी वैसा ही है, टिक मार्क करना है, जुमला सही है या जुमला गलत है, ठीक है। मदरसा एयरपोर्ट के करीब है, क्या स्टेटमेंट आ रहा है, मेरा स्कूल एयरपोर्ट के करीब है, लेकिन गलत है, मेरा स्कूल मस्जिद के करीब है। तो टिक मार्क, जो जुमला सही है उसको टिक मार्क करना है, जो गलत उसको क्रॉस करना है, ये आपको करना है, और इतना ही क्या काफ़ी है। और जो जो मुल्क का नाम आया उसको बताना है कि एशिया में कौन सा मुल्क है उसको लिखिए, जो जो जिक्र हुआ है, अफ्रीका में कौन सा मुल्क है वो लिखिए, यूरोप में कौन सा मुल्क है, जो जो जिक्र हुआ है उसको लिखिए। तो इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह हम लोग कल तो नहीं शायद मिल सकेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 22 के साथ में। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो सवाल आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ग्रुप में इतना ही करते, होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ये की फैक्ट्स पढ़ते रहिएगा, ठीक है। पहले से दुआ करते हैं, अल्लाह हम लोग अरबी सीखना सिखाना आसान करे, अल्लाह हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।